Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am again back with a new fantabulous lecture based on the chapter number 3 from the 11th standard CBSE and the title of the chapter is Plant Kingdom. प्लांट किंगडम ये जो चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में से इसमें से 2 एमसीक्यू गारंटेड पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। नीट एग्जाम में जो 90 एमसीक्यू उसमें से 2 एमसीक्यू गारंटेड इस चैप्टर में से पूछे ही जाते हैं और ये चैप्टर काफी बेहतरीन चैप्टर है और मैं उसे और बेहतरीन पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। So our chapter is chapter number 3, Plant Kingdom, 11th standard CBSE. Let's look towards about this exam. Yes, I'm a professor which is conducting the you can say coaching classes for the NEET, CET, NET, SET, GATE, PET, IIT JAM. Okay, and this topic is related to the NEET. Let's begin with this topic. First, I'll give you in brief about the introduction. Yes. So what are basically the plants or what are basically the plant kingdom planting? So basically if we start, so our start with the last chapter. In our last chapter, biological classification, we understood that scientist R.H. Whitaker in 1969 classified every organism into the 5 categories, and these categories are kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. So he classified every organism into 5, but main category, I won't say that the particular category is you can say main, as our chapter is going about the plant kingdom. I won't say like that, but plant kingdom is also one of the important. So out of this 5 we are going to talk about the kingdom Plantae in detail. Yes, we are going to discuss about the kingdom Plantae in detail. So who are the plants or who are the members of kingdom Plantae? Plants are the type of a living organism which are eukaryotic, most probably multicellular, but there are some exceptions of unicellular like a green algae called chlorella. Yes, green algae called chlorella. And they are photosynthetic organism, they are real producer on the earth. They have ability to produce food material by the process of photosynthesis. They capture sunlight and turn into the glucose molecule. That is the main features about the plant. They contain chloroplast, and inside the chloroplast they may contain chlorophyll pigment which is a green. They may have a leucoplast which is a white pigment. They may have a chromoplast which is a colorful pigment. Yes. जैसे हमें पता है कि साइंटिस्ट आर.एच. व्हिटेकर, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया होता, तो उसमें से एक कैटेगरी है, एक किंगडम है प्लांट और प्लांटी। तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये मोस्ट प्रोबेबली मल्टीसेल्युलर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल है जो यूनिसेल्युलर है, से फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी, क्लोरेला एल्गी, ठीक है, तो ये यूनिसेल्युलर है, बाकी सब मोस्ट प्रोबेबली मल्टीसेल्युलर है। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल होता है और सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट होने के कारण इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, या तो ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, अलग अलग पिगमेंट हो सकते हैं और ये लाइट को कैप्चर करके उसमें से ग्लूकोज प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूसर अगर हम कहें तो वो प्लांट ही होते हैं, अब मैं आपको प्लांट के बारे में डिटेल में लेके चलता हूँ। ये तो उनके ऊपर से बेसिक बातें थी। यस, until there was a 5 domain system of classification, there was a 2 domain system of classification which was given by the scientist called Carolus Linnaeus. जब तक 5 domain system classification आया उस वक्त तक 2 domain system of classification था जो कि साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था और उन्होंने कार्लस लिनियस ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया थे सभी को। वन वाज एनिमेलिया, सेकंड वन वाज प्लांटी। तो उन्होंने प्लांटी में किस के ऐड किया होता है? देखिए, कार्लस लिनियस इंक्लूड plantae such as nowadays we are calling as a Monera, means bacteria, then nowadays we are calling Protista, and then you can say fungi.
कार्लस लिनियस ने इन सभी को बेसिकली इसके अंदर ऐड कर दिया होता, सभी को। जस्ट बिकॉज आप नोटिस करो सब में कॉमन क्या है, बैक्टीरिया। डू बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल? यस। डू प्लांट हैव अ सेल वॉल? Yes, but which type of protista? Plant-like protista have a cell wall. Fungi, yes, fungi also have a cell wall which is made by chitin and polysaccharide. And what about the plant? Yes, plant also have a cell wall which is features matching to them. So Carolus Linnaeus divide all these organisms into the kingdom Plantae, but it was a rejectable theory. Why it is rejectable theory? For example, kingdom Monera. They are containing cell wall, no doubt, but they are prokaryotic. They don't have a nucleus, so it was separated. Then protista. Protista are eukaryotic. Yes, protista are eukaryotic, but most probably protista are you can say all protista are eukaryotic, but they are also unicellular. But most probably plants are multicellular. Only some exceptional examples are like a Plantae. Chlorella is a unicellular, and in protista all are unicellular. So that has to be think about in proper consideration. And then third about fungi. Fungi are not producer. They cannot produce own food material. They are consumer. Has to depend on another. Therefore, they will not be included under this. जब तक 5 डोमेन सिस्टम आई तब तक किंगडम प्लांटी के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा इन सबको रखा गया था कार्लस लिनियस द्वारा। लेकिन कार्लस लिनियस ने सिर्फ एक ही चीज सोची कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजा इन तीनों के अंदर सेल वॉल है और प्लांटी में भी सेल वॉल है, तो इन सबको क्यों ना प्लांट में ऐड कर दिया जाए। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि मोनेरा जो है उनके अंदर सेल वॉल तो है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक है और खुद का फूड नहीं बना सकते। प्रोटिस्टा ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक है लेकिन ये यूनिसेल्युलर है। सभी के सभी प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन प्लांट तो मल्टीसेल्युलर है। अगर कुछ एग्जांपल को हम छोड़ दें साइड में तो। और उसके बाद फंजाई, दे आर फंजाई आर eukaryotic. They are most probably multicellular, but some examples are unicellular, like a yeast. But fungi are not producer. They can't prepare the food material by photosynthesis. They are consumer and saprophytic, and as well as some parasitic in nature. So generally in theory को भी reject किया गया। तो सबसे फाइनली जो थियरी एक्सेप्ट हो गई थी वो थी आर.एच. व्हिटेकर की। फिर आर.एच. व्हिटेकर ने जो प्लांटी बनाई, तो प्लांटी को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने सिस्टम्स बनाई, classification systems. So I'll tell you guys in this chapter, in our introduction, we have 6 different type of a classification system based on particular character, and then I will describe you everything in detail. Yes. So first one is artificial classification system. Now why artificial classification system? आर्टिफिशियल, आप सिर्फ ये समझ जाइए कि कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन सी टेक्निक से क्लासिफाई किया हुआ था। अब मान लो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अब मैं आपको स्पेशली प्लांट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सभी प्लांट जितने भी प्लांट है उन सभी को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किया हुआ है। सबसे पहली टेक्निक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, यस, प्लांट्स आर classified based on morphological character. Let me change the marker. So first system of classification is artificial classification system, in which how plants are classified on the basis of which criteria? Plants are classified on the basis of morphological character. मतलब प्लांट बाहर से कैसे दिखते हैं, यस, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, तो बाहर से प्लांट कैसे दिखते हैं उस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप ब्लैंक और नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, यस, अगर नहीं बैठे हो तो बैठो, और पेन और नोटबुक लेके बैठे हो तो आप ये चीजें लिखो, शॉर्ट में लिखो, लाइक प्लांट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसमें क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, इसके लिए मैं पूरा समझा रहा हूं, लेकिन आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड,
नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी हुई थी? ठीक है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दी हुई थी जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। यस, जोसेफ डाल्टन हुकर। इनको कॉमनली मतलब अभी हमने बायोलॉजी पढ़ी हुई, तो बायोलॉजी में जनरली इनका नाम कैसे लिया जाता है? बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर किस चीज के लिए फेमस है? हमेशा याद रखो, बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट वेर फेमस फॉर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बेंथम एंड हुकर ये दोनों साइंटिस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए फेमस है। और इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है ये देखिए, natural system of classification is based on internal character, we called it as anatomy. It is based first one is anatomy, means internal character, then second one is embryology, and then it is also based on chemical constituent and all this। ये सभी के सभी अगर हम कैरेक्टर देखें तो इन कैरेक्टर को, इस टेक्निक को हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वन वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन आर्टिफिशियल, सेकंड वन इज natural system of classification. Now I tell you other system of classification. Let's see the third type of classification. Yes, now third type of classification is, you can say, cytotaxonomy. अब हमने इसे डायरेक्टली cytotaxonomy लिखा है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? Taxonomy is nothing but the study of classification. Cyto means cell, taxonomy means study of classification. So cytotaxonomy, it is based on number, shape and you can say structure, number, shape and structure of chromosome। मतलब एक स्पेसिफिक प्लांट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने, हाँ क्रोमोसोम के नंबर भी अलग हो सकते हैं, जस्ट लाइक हेप्लॉइड, डिप्लॉइड हम कहते हैं ना। यस, सो इन अ पर्टिकुलर प्लांट हाउ मच नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इज अवेलेबल, what is the structure of chromosome and what is the shape of chromosome. This type of classification system is cytotaxonomy. This is sorry third है ये, this is cytotaxonomy. Then you can say chemotaxonomy. So again, what is meant by taxonomy? Taxonomy means classification, study of classification. Chemo means chemical. So this is based on chemical constituent ऑफ सेल। एक स्पेसिफिक प्लांट के अंदर और उनके स्पेसिफिक सेल्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट क्या है, उनके अंदर प्रोटीन कौन से हैं, उनके अंदर अमाइनो एसिड कौन से हैं, लिपिड कौन से हैं, सैचुरेटेड लिपिड है, अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है, उनके पूरे की पूरी केमिकल एनालिसिस से हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। हमें याद कैसे रखना है? साइटोटैक्सोनॉमी based on structure, shape and number of chromosome. Chemotaxonomy based on chemical material or chemical constituent present in particular plant body. Artificial system of classification only on the external character, morphological character. Natural classification system which was given by the Bentham and Hooker, it is based on internal character, we call anatomy, embryology, chemical constituent, phytochemistry, etc. उसके बाद और भी क्लासिफिकेशन मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ। यस,
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अभी कहीं कहीं पे क्लासिफिकेशन शब्द यूज किया जाता है और कहीं कहीं पे डायरेक्टली टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया जाता है। सो व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? सो इट इज बेस्ड ऑन phylogenetic relationship. It is based on phylogenetic relationship. अब आप समझो phylogenetic relationship मतलब क्या है। Just like we are human being and some other human beings, like one human being from Africa, another human being from the New Zealand, another human from the West, you can say India. So all these three human beings are from the different country, but they all are having same genetical relationship. What? They all are belonging to same species, Homo sapiens sapiens. अफ्रीका का जो बंदा है न्यूजीलैंड का बंदा है और हम इंडिया का, और दूसरा कोई कंट्री का, समझ लो बांग्लादेश का, अमेरिका का, लंदन का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं क्या भी हो, वो सभी के सभी ह्यूमन बीइंग है ना, तो वो सभी के सभी है होमो सेपियन सेपियन। तो इस वाला क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, which is based on what? Phylogenetic relation means relationship among the species है। और एक क्लासिफिकेशन आता है, सॉरी मैंने ये सीक्वेंस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मुझे सीक्वेंस भी मैनेज करना चाहिए था ताकि आपको और जल्दी समझे। सिर्फ याद ये रखो, आर्टिफिशियल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नेचुरल सिस्टम, इंटरनल कैरेक्टर, साइटोटैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम नंबर साइज शेप, कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, फाइलोजेनेटिक, स्पीसीज रिलेशनशिप, और दूसरा आता है न्यूमेरिकल taxonomy. So what is numerical taxonomy? This is classification of a plant based on coding techniques of computer. ठीक है, तो ये वो वाला क्लासिफिकेशन जहां पे हम कंप्यूटर के अंदर प्लांट्स को क्लासिफाई करें। हम कंप्यूटर के अंदर कैसे प्लांट को क्लासिफाई करें? जैसे अगर प्लांट में से कुछ अगर हम सेल लेते हैं तो उसका कोडिंग, डिकोडिंग, बारकोडिंग करके प्लांट को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये भी टेक्निक है प्लांट को क्लासिफिकेशन करने की। तो ये सभी प्लांट के क्लासिफिकेशन होंगे। अब मैं आपको नेचुरल एक कंटेंट बताता हूँ कि कितने प्रकार के प्लांट हैं, उनके डिविजन्स कितने हैं, और उसके बाद हम एक एक डिवीजन को इस पूरे के पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ये क्या थे? ये सबके क्लासिफिकेशन के सिस्टम। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन प्लांट्स में होता कैसे। जैसे एनिमल में क्लासिफिकेशन होता है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, यस, लेकिन प्लांट में क्लासिफिकेशन कैसा होता है हमें वो देखना है। तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। ऑल द प्लांट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। ऑल द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी एंड दिस कैटेगरीज आर, first category is cryptogams. First category is cryptogams and second category is phanerogams. First category cryptogams, second category phanerogams. Yes, so what is meant by cryptogams, what is meant by phanerogams? Cryptogams are spore producing plants. And what are the phanerogams? Phanerogams are seed producing plants. तो जो प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उस स्पोर में से नया प्लांट बनता है तो वो वाले प्लांट होते हैं क्रिप्टोगैम्स, और जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं और उस सीड में से नया प्लांट बनता है तो वो होता है phanerogams. फिर से एक बार समझ लीजिए, द प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर एंड फ्रॉम स्पोर अ न्यू प्लांट इज जर्मिनेटेड, सच काइंड ऑफ अ प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट और क्रिप्टोगैम्स. And if a plant are producing seed and from seed a new plant is germinating, then such kind of a plants are called as a seed producing plant. Also we call them as a phanerogam. So I'll tell you now which plants are basically divided into this category. आपने नाम सुना होगा basically
नाम इन द सेंस जैसे प्लांट्स आर हैविंग अल्गी, प्लांट्स आर हैविंग ब्रायोफाइट, प्लांट्स आर हैविंग टेरिडोफाइट, प्लांट्स आर हैविंग एंजियोस्पर्म, प्लांट्स आर हैविंग जिम्नोस्पर्म। तो ये 5 डिवीजन है, तो उनको हम वन बाय वन डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक क्रिप्टोगेम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज अल्गी, सेकंड कैटेगरी इज bryophytes, and third category is pteridophytes. Yes, first category is algae, second one is bryophyte, and third one is pteridophyte. Now if we talk in phanerogames, so they are divided into 2 categories, and these 2 categories are, first one is angiosperm and second one is जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सो अब आपने ये प्रॉपरली समझ लिया कि अल्गी किस में आता है और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये किस में आते हैं, आपको क्लियरली समझ गया। मैं आपको इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, ये देखिए, जब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे 50 एमसीक्यू, उसमें से आपको ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यू इंट्रोडक्शन में ही कवर हो जाएंगे। गारंटी में देता हूं आपको 10 एमसीक्यू इंट्रोडक्शन से ही कवर हो जाएंगे। और ये भी समझ लीजिए, मान लो 2 एमसीक्यू आते हैं पूरे चैप्टर में और अगर 1 एमसीक्यू इंट्रोडक्शन में आ गया, तो क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वाला जो इंट्रोडक्शन है ना, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप जब चैप्टर के अंदर जाओगे, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियो, जिम्नो के कैरेक्टर देखोगे, तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और ये पता होनी चाहिए तभी मैं आपको बता रहा हूं, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, algae, bryophytes, pteridophyte, and seed producing plants are further divided into 2 categories such as the angiosperm and gymnosperm. Let's talk one by one. First, algae. Algae are also known as a thalloid plant. Algae are also known as a thalloid plant. Why algae are called as a thalloid plant? I'll tell you. Algae are also known as a thalloid plant just because algae cannot differentiate it into root, stem and leaves, therefore they are called as a thalloid plant. हम thalloid plant किसको कहते हैं? ऐसे प्लांट जो रूट, स्टेम और लीफ में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते, उन प्लांट को हम कहते हैं थैलोइड प्लांट। जैसे फ्लावरिंग प्लांट है मैंगो, तो मैंगो में हमें रूट दिखते हैं, स्टेम दिखते हैं और ब्रांचेस दिखते हैं, लीफ भी दिखते हैं, ये सब चीजें दिखती है, तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं यस सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। मतलब ये थैलोइड नहीं है, ये वेजिटेटिव प्लांट है। इनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्लांट। मतलब उनकी पूरी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमें दिखता है, लेकिन अगर किसी प्लांट का रूट, स्टेम एंड लीव्स अगर हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ना ही देख पाते हैं, तो हम उनको कहेंगे थैलोइड प्लांट। तो अलगी कौन सी कैटेगरी में आती है? अलगी आती है थैलोइड प्लांट्स। और अलगी की स्टडी को जनरली हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज अ फाइकोलॉजी। एक्चुअली सबके इंडिविजुअल स्टडी है, तो हम इतना डिटेल में हम कैरेक्टर में जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, रिमेंबर स्टडी ऑफ अलगी इज यू कैन कॉल थैलोफाइटा। मतलब ये इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कोई पूछे थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा क्या होगा? अलगी। व्हाई? बिकॉज़ अलगी इज अ थैलोइड। व्हाट इज अ थैलोइड? द प्लांट बॉडी व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड थैलोइड। एंजियोस्पर्म में हमें पूरे के सभी पार्ट्स दिखते हैं, लेकिन हमें अलगी में कभी भी पार्ट्स नहीं दिखते। अलगी जो पानी में होती है ग्रीन कलर की, क्या हमें उसमें रूट, स्टेम और लीफ दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या है? यह थैलोइड। ये क्या है? यह है थैलोइड। दूसरा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज अ एम्फीबियन प्लांट। दे आर आल्सो नोन एज अ amphibian plant. Now why amphibian? Generally what is actually the meaning of amphibian? When the particular organism survive inside the water and also comes on the ground, and particular animal from ground can also go into the water. Dual mode of life is called amphibian. But plants are non-motile. How plant will come from water to the ground and again will go from ground to the water? It is not the amphibian meaning in case of a plant. ठीक है, तो जनरली जैसे हम एम्फीबियन कहते हैं कि जो एनिमल पानी में से सॉइल के पानी में से जमीन के ऊपर आता है, जमीन में से फिर से पानी में जा सकता है, जैसे क्रोकोडाइल है, ठीक है, जैसे यू कैन से आप कह सकते हो टोर्टोइस है, तो ये एम्फीबियन है। तो वो एनिमल से रिलेटेड सुटेबल है वर्ड। लेकिन प्लांट में ब्रायोफाइट्स में एम्फीबियन का मतलब कुछ और है। एम्फीबियन का मतलब क्या है? ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियन। एक गांठ बांध के चलो माइंड में फिक्स कर लो। Plants, bryophytes plants are generally called as amphibian plant just because they are requiring water for two main purpose. First purpose,
completion of a life cycle, and second purpose that is fertilization. प्लांट ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको वाटर की जरूरत होती है दो स्टेप करने के लिए. फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन और सेकंड स्टेप है लाइफ साइकिल, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट करनी. तो ये दो स्टेप प्लांट को कंप्लीट करने के लिए वाटर की कंपल्सरी जरूरत होती है. इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कैटेगरी में डालते हैं, ब्रायोफाइट्स प्लांट कहते हैं. यस, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन प्लांट. ओके, दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ fertilization and as well as completion of what? Life cycle, and therefore they are called as a amphibian plant. Moving towards third, pteridophytes. काफी इंटरेस्टिंग प्लांट है, दुनिया के पहले प्लांट है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया गया था. Pteridophytes are also known as the first vascular plant. Pteridophytes are also known as the first vascular plant on earth. Why it is? वॉस्कुलर का मतलब देखिए, एनिमल के अंदर, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर वॉस्कुलर का मतलब होता है जहां पे ब्लड सप्लाई हो. लाइक हार्ट इज अ वॉस्कुलर ऑर्गन, आवर आईज आर टू मच वॉस्कुलर ऑर्गन बिकॉज देयर इज अ सप्लाई ऑफ ब्लड. लेकिन प्लांट में वॉस्कुलर का मतलब अलग होता है. प्लांट में वॉस्कुलर का मतलब होता है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वॉस्कुलर प्लांट्स. सो दुनिया के सबसे पहले वॉस्कुलर प्लांट कौन थे? टेरिडोफाइट्स. यस, टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट वॉस्कुलर प्लांट ऑन द अर्थ. वॉस्कुलर प्लांट तीन ही प्लांट आते हैं, एक आता है टेरिडोफाइट, एक आता है एंजियोस्पर्म, एक आता है जिम्नोस्पर्म. ये दोनों वॉस्कुलर प्लांट है. और गारंटी से देखता हूं मैं आपको, मैंने क्वेश्चन बनाया है ना, मुझे पता है मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट किए हुए. आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा आएगा, which among the following is lower vascular plant. लोअर वॉस्कुलर प्लांट. अभी ये देखिए, ये तीनों के तीनों लोअर प्लांट्स हैं और वो दोनों हायर प्लांट्स हैं. सुन लीजिए पहले, वो दोनों हायर प्लांट्स हैं, ये तीनों के दोनों लोअर प्लांट्स हैं. अब ये तीनों लोअर प्लांट्स में से वॉस्कुलर कौन है? यही, ठीक है. और अगर हम वॉस्कुलर सिस्टम से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों वॉस्कुलर प्लांट्स हैं. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट लाइक ओड वन आउट. तो ओड वन आउट में क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. तो फिर आप कैसे सेपरेट करोगे? तो ये देखिए, एंजियोस्पर्म्स आर हैविंग xylem and phloem tissue. Is it? They are having xylem and phloem tissue. Gymnosperms are also having xylem and phloem tissue. तो ये दोनों के दोनों कौन है? वॉस्कुलर प्लांट है. इवन तो टेरिडोफाइट्स में भी xylem and phloem tissue है. तो कौन बच गया? ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट को सेपरेट कर दो, उसको आंसर सिलेक्ट कर दो, 4 मार्क्स पक्के आपके. क्यों? Just because bryophytes are not having xylem and phloem tissue. Is it true? Is it clear, guys, everyone? So pteridophytes were the first vascular plant because they were containing xylem and phloem tissue. Is it true? ये तीनों की तीनों आई होप सो आपको समझ गए. अब हम चलते हैं phanerogams की तरफ. Phanerogams are seed producing plant and they are further divided into two main category, angiosperm and gymnosperm. Now what is difference between them? Angiosperms are having closed seed. Angiosperms are having closed seed. Now just see, this is the seed of angiosperm which has a two cover, outer cover testa and inner cover tegmen. Inner cover tegmen. But in gymnosperm seed is open. It do not show any covering. जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है? सीड की कोई कवरिंग नहीं होती. ओपन सीड, नेकेड सीड जैसे हम कहते हैं, ओपन सीड और नेकेड सीड होते हैं ये. सो these are open closed seed and these are naked or open seed plant. Now one more difference, gymnosperms are non-flowering and angiosperms are flowering. एक और चीज है, एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं. जिम्नोस्पर्म में फ्लावर कभी आते ही नहीं और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर आते हैं. अगर आप ये देखो, ये 5 कैटेगरी, अगर आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट देखो तो फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ यही है. अगर आप कहीं पे भी फ्लावर देखते हो तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से? फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म है, बाकी कोई भी नहीं है. इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? आई होप सो आप लोगों को इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय द नेचुरल सिस्टम बाय बेंथम एंड हुकर, ये आपको क्लियरली समझ गया होगा. मैंने पूरी मेहनत की, जितना मैंने पढ़ा हुआ था,
जितना मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ा वो सब के सब मैंने आपके सामने रख दिया हुआ है, सब के सब आपके सामने रख दिया हुआ है. सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. So friends, we are going to discuss about first topic, first you can say division of this chapter, that's called algae. Yes, so this is the main characteristics about the algae, and after learning this character we will discuss about the type of algae. Like a green algae we called chlorella, brown algae we called chlorella. I mean to say chlorella is just only the example of this algae. Green algae we called chlorophyceae, brown algae we called phaeophyceae, and red algae we called rhodophyceae. Why the names are like that, that also I will tell you by explaining that single algae. So let's look about single character. First one, algae are chlorophyll containing thalloid, autotrophic and largely aquatic. Four important things are there in this first character. Algae are chlorophyll containing, means algae के अंदर chlorophyll pigment होता है. फिर अल्गी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल सी हो सकता है, क्लोरोफिल डी हो सकता है. कुछ कुछ अल्गी के अंदर यू कैन से फुकोक्सांथिन, और कुछ अल्गी के अंदर फाइकोइरिथ्रिन. ये सभी पिगमेंट हो सकते हैं. यस, इफ अल्गी इज अ ग्रीन then it will contain chlorophyll A and B. If algae is a brown, then it will contain chlorophyll A and C. And if algae is a red, then chlorophyll A and D may be present. If a brown algae is there, तो उनके अंदर फुकोक्सांथिन होगा जो उनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा. और अगर algae रेड है तो उनके अंदर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होगा. फाइको मीन्स algae and red means erythro. So फाइकोइरिथ्रिन, red algae. ठीक है. Then algae are thalloid. What is meant by thalloid? Thalloid का मतलब होता है when the plant body is not differentiated into root, stem and leaves, it is called thalloid. जब कोई प्लांट बॉडी में हमें रूट, स्टेम और लीफ ये क्लियरली नहीं दिखते हैं, तब हम उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं thalloid body. तो ये दो चीजें क्लियर हो गई. Algae are autotrophic. Obviously they are member of a kingdom Plantae. All the members of kingdom Plantae are fully autotrophic because they have ability to prepare food material by photosynthesis, and they are largely aquatic. हाँ, कुछ algae ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एरिया में पाए जाते हैं, but most probably ये largely aquatic है. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, हम दूसरे भी देखते हैं. Like they found in moist stone, मतलब कई कोई ऐसे पत्थर होते हैं जो गीले होते हैं, जहाँ पे moisture ज्यादा होता है, तो वहाँ पे भी algae grow हो जाती है because algae requires some amount of water. They also grow in a soil, they also grow in a wood material. In association to lichen, in association with fungi, they shows lichen. Just like हमने basically chapter number 2 biology of classification में देखा हुआ है, lichen is nothing but the single body which has a two part, half portion is algae and half portion is fungi. उसमें हमने ये भी देखा था कि algal portion of a lichen is called photobiont or phycobiont. Clear everybody? So moving towards the third character. They varies in sizes. उनके साइज में डिफरेंस है. Just like unicellular algae called Chlamydomonas, which is colonial like Volvox, and filamentous like Ulothrix and Spirogyra. Sorry, मैंने सेंटेंस थोड़ा मिक्स अप कर दिया. यहाँ पे देखिए, फिर से थोड़ा क्लियरली देखते हैं. There varies in sizes. Like unicellular algae, Chlamydomonas. यूनिसेलुलर algae कौन सी है इसमें से? Chlamydomonas. कॉलोनियल कौन सी है? कॉलोनियल है Volvox and filamentous. Yes, सॉरी, कॉलोनियल कौन सी है? Volvox है. यूनिसेलुलर algae कौन सी है? Chlamydomonas. कॉलोनियल algae कौन सी है? कॉलोनियल algae मतलब ग्रुप में रहने वाले, तो वो होते हैं Volvox. एंड filamentous algae मतलब जिनको फ्लैजेला होते हैं. filamentous algae कौन कौन से हैं? तो वो हैं Ulothrix and Spirogyra. ठीक है. अभी आगे का सेंटेंस भी है. एक्चुअली सेंटेंस काफी ज्यादा हो रहे थे तो स्पेस की तो मैंने वहीं पे ऐड कर दिया है. Algae fixes half of the carbon dioxide from the earth. मतलब
अर्थ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा को पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में से 50% कार्बन डाइऑक्साइड तो अलगी अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेती है. जस्ट बिकॉज यू नो व्हाई, we know that photosynthesis is the you can say biological process in which light energy is converted into the chemical energy. That's called photosynthesis to generate glucose. तो photosynthesis करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये रॉ मटेरियल होता है और अलगी 50%, अर्थ का 50% कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अलगी एब्सॉर्ब करेगी तो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? ऑक्सीजन. तो ऑब्वियसली अलगी हमारे लिए काफी बेहतरीन ऑर्गेनिज्म है. यस. नेक्स्ट, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड फॉर अगार अगार पाउडर प्रिपरेशन. यू नो अगार अगार पाउडर? I would like to tell you here. See, this is the one nutrient media plate. This is the nutrient media plate, and this nutrient media plate is useful for the growing bacteria. We are using this for growing बैक्टीरिया. हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इस न्यूट्रिएंट मीडियम को प्लेट को यूज करते हैं. अब इस प्लेट में क्या डाला जाता है? इस प्लेट में डाला जाता है अगार अगार पाउडर. और अगार अगार पाउडर का यूज क्या होता है? अगार अगार पाउडर का यूज ये होता है कि लिक्विड का हम जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर होता है. हाउ वी आर मेकिंग अ एमएस मीडियम, Murashig and Skoog medium in the tissue culture. So in tissue culture also we are requiring convert liquid into gel. So that is also required agar agar powder. So agar agar powder generally किससे मिलता है? agar agar powder ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम इन अलगी से मिलता है. ये दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये जनरली रेड अलगी में आते हैं, रोडोफाइसी. नेक्स्ट है, क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज अ स्पेस ट्रेवलर. जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में हमें एयर होस्टेस जनरली फूड वगैरह सर्व करते हैं. लेकिन अगर फ्लाइट को मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं पे लैंड करना पड़ता है, तो उस समय अगर वहां पे फूड अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या दिया जाता है? फूड की जगह पर मान लो फूड खत्म हो गया उनके पास एयरलाइन के अंदर, तो वो हमें ग्रीन अलगी के पाउचेस पैचेस प्रोवाइड करेंगे, तो टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, जो क्या होगी? ग्रीन अलगी क्लोरेला. क्योंकि क्लोरेला में से हमें काफी सारा प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल मिलते हैं. मतलब हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी क्लोरेला अलगी प्रोवाइड कर देगी. दैट इज यूज ऑफ अ ग्रीन अलगी, क्लोरेला अलगी इन अ स्पेस ट्रेवलर. नेक्स्ट वन, algae reproduces by vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. अब ये सुन लीजिए कौन कौन सी टेक्निक है. algae reproduces by vegetatively, by which method? फ्रेगमेंटेशन. मेरे स्टूडेंट्स आप सब लोग लिखते जाओ ये चीजें. यस, algae reproduces vegetatively by which technique? Fragmentation. And asexually by which technique? By use of a ascospore. And sexually by means of a gametes. Which gametes? Common gametes. ठीक है. Then अब ये देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपको इजी समझ में आए. Gametes are flagellated and similar in size. Example in Chlamydomonas. Gametes are flagellated and similar in size. For example, this is one gamete, this is another gamete. They are flagellated. दोनों के दोनों फ्लैजेलेटेड है और प्लस दोनों की साइज भी इक्वल है. तो वो किस में पाया जाएगा? वो होगी क्लेमिडोमोनास में. और आगे देखिए, नॉन फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलर नहीं है, नॉन फ्लैजेलेटेड बट सिमिलर इन साइज. एग्जांपल स्पायरोगायरा. सच टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस. आपको ये तीन वर्ड याद रखने हैं, आइसोगेमस, यस, ऊगेमस और एनिसोगेमस. आइसोगेमस में दो टाइप आते हैं, flagellated algae and similar in size. It is called isogamous. It is called isogamous. Second thing, non-flagellated but similar in size. It is also called isogamous. लेकिन हमें ये याद रखना है कि flagellated plus similar in size, इसका एग्जांपल होता है Chlamydomonas. और उसके बाद non-flagellated but similar in size, उसका एग्जांपल होता है Spirogyra. ठीक है. उसके बाद देखिए, fusion of two dissimilar in size of gametes, it is called anisogamous. मतलब पहले में क्या था? साइज एक जैसी होनी चाहिए. अब इसमें क्या है? fusion between two dissimilar gametes, like one gamete is a large one and second gamete is a small one. So fusion between two dissimilar gamete in sizes, this is known as a
anisogamous. Yes, this is called anisogamous. Example is Chlamydomonas. Example is Chlamydomonas. Then fusion between one large and one small. Fusion between one large and one small. This is called oogamous. अब ये डिफरेंस क्या होता है इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस आ गया? तो डिफरेंस ये देखिए, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मेल गैमेट, यस, एंड वन स्मॉल फीमेल गैमेट. Fusion between one large male gamete and fusion between one small female. Sorry, fusion between large male gamete and small female gamete. This is called oogamous. Example volvox and fucus. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको. Fusion between two flagellated similar in sizes. It is called isogamous. It is called isogamous. Example is Chlamydomonas. Example is Chlamydomonas. And fusion between non-flagellated but similar in size. It is also called isogamous. Yes, but example is Spirogyra. Okay. Now fusion between two dissimilar sizes of gametes. It is called anisogamous. Example is Chlamydomonas. और उसके बाद fusion between one large male gamete and one small female gamete. It is called as a oogamous. Example volvox and fucus. So this is the basic characters about the algae. So guys, now we are going to discuss about the first type of algae. algae अपने जो पॉइंट अभी तक देखे वो सब algae के बारे में थे. अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ algae. So right now I am going to tell you green algae. Green algae stand for chlorophyceae. So green means chloro. जैसे हम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट. तो क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है. So green means chloro and algae, study of algae is called phycology. That is why it is phyceae. Yes, let's start with the first one. The plant body may be unicellular, colonial, filamentous and have a chlorophyll pigment A and B in their chloroplast. See यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स है. The plant body may be unicellular. They are single cell. Maybe means some may be multicellular, but some may be unicellular. Colonial, some may be found in the group. Some may be unicellular. Some may be found in the group. Some may have a flagella, means filamentous. They contain chlorophyll A and B in their chloroplast. तो उनके खुद के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल A और B ये पिगमेंट है. Then the chloroplast may be discoid. अभी ये शेप है discoid, plate like, reticulate, cup shape, spiral और ribbon like, different in species. मतलब algae के जैसे स्पीसीज अभी ये यहाँ पे देखिए काफी सारे एग्जांपल दिए हुए. Chlamydomonas is algae, green algae, Ulothrix, Chlorella, Spirogyra, Chara, volvox. So number of species are different, but all are green in color. All are green color means green algae. So some may have a discoid, some may have a plate-like, some may have a reticulate, some may have a cup shape, some may have a spiral or ribbon type of chloroplast structure. ये सब chloroplastic structure. Then third, they have storage body called pyronoids. Pyronoids. ये algae वो ग्रीन algae होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं पायरोनोइड्स. और पायरोनोइड्स क्या करते हैं? पायरोनोइड्स जनरली प्रोटीन स्टोर करते हैं. पायरोनोइड्स जनरली प्रोटीन को स्टोर करते हैं. और कुछ पायरोनोइड्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करते हैं. यस, so there are certain pyronoids which are storaging protein, which are storaging oil droplet. याद रखना इसके ऊपर एक या दो एमसीक्यू आ ही जाएंगे. मतलब हम जब मैं आपको एमसीक्यू जब पढ़ाऊंगा तो इसमें से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे. आगे देखिए, ग्रीन algae have a rigid cell wall made up of inner cellulose and outer pectose. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा. Green algae are generally made by the two covering. Outer covering is made by pectose and inner covering is made by cellulose. Then वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. जैसे मैंने आपको अलगी के बेसिक कैरेक्टर में पढ़ा है वैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय व्हिच स्पोर? जूस्पोर. इंट्रोडक्शन में भी यही था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय flagellated zoospore and
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस मींस टू फ्लैजेलेटेड गैमेट्स सिमिलर इन साइज। यस, उसमें दूसरा भी था, नॉन फ्लैजेलेटेड बट सिमिलर इन साइज, इट वाज कॉल्ड आइसोगेमस। देन व्हाट वाज एनिसोगेमस? एनिसोगेमस मींस two different type of gametes, like one small and one large. Yes, one small large means two different size of gamete, it is called anisogamous. And then oogamous, one large male gamete, one small female gamete, it was called as a oogamous. Example of all the green algae are Chlamydomonas, Ulothrix, Chlorella, Spirogyra, Chara and Volvox. So guys, now we are going to discuss about the second type of algae, that is called as the brown algae. तो green algae कैसी थी? Green means chloro, physi means algae. तो same way brown algae का भी मतलब वैसा ही है. Brown is a color which is indicated by word pheo and physi means algae. So brown algae, pheophysi. Yes, let's begin with the first character. They are found in primarily in marine habitats. मतलब most probably they are found in the sea water. Most probably they are found in sea water. Primarily कहा है ना, so most probably sea water. They are not found in fresh water. Second, they shows great variation in sizes and forms. Their sizes is also different and their forms, varieties are also different. Third, they may be simple branch filamentous forms. Example, ectocarpus. ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नीट एग्जाम पास करने के लिए आपको ये बारीक बारीक जो छोटी छोटी चीजें हो ना, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे आपको पूछा जा सकता है यार, एक्टोकार्पस बिलोंग्स टू, तो शायद आप सोचोगे एक्टोकार्पस, ये पूछेंगे फियोफाइसी, लेकिन ये नीट एग्जाम है, आपको ये भी पूछा जा सकता है एक्टोकार्पस, तो आपको ऑप्शन होंगे सामने, इट विल बी ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। तो ये छोटी छोटी चीजें जब याद रखोगे तभी जाके आप एप्रॉन पहन पाओगे और स्टेटिस्कोप हाथ में ले पाओगे। यस, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे गाइस। आपको नीट पास करने के लिए ये सब चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। यस, सो दे मे बी सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक इक्टोकार्पस, मे बी ब्रांच फॉर्म एज कार्प। यस, इनके अंदर में भी ब्रांच फॉर्म भी हो सकते हैं। एग्जांपल है उनका कार्प्स, which may be rich and may up to the high up to the 100 मीटर। ये देखिए कार्प जो है वो 100 मीटर तक ग्रो हो सकते हैं। 100 मीटर इज अ बिग थिंग। अगर आप सोचो कि सी लेवल में पानी के अंदर 100 मीटर अगर कोई अलगी ग्रो होती है तो पूरा का पूरा जो सी का जो वाटर है ना, वो वाटर उसी कलर का दिखेगा जो अलगी का कलर होगा। तो समुद्र कैसे दिखते हैं? जनरली ब्राउन कलर दिखते हैं, जस्ट बिकॉज विच अलगी? ब्राउन अलगी। और हमने क्या कहा यहाँ पे? प्राइमरीली फाउंड इन मराइन हैबिटेट्स ना, तो ऑब्वियसली सी का वाटर कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ांथोफिल एंड डू नॉट फॉरगेट फुकोक्सांथिन। जनरली ब्राउन अलगी को ब्राउन कलर देने वाला कौन सा पिगमेंट है? वो है फुकोक्सांथिन, मेन कलर। यस, रिजर्व फूड मटेरियल इज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल ये दोनों रिजर्व फूड मटेरियल। अब क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल? से फॉर एग्जांपल, अगर हम काफी टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली हमारे साथ क्या कैरी करते हैं? हम हमारे साथ लंच बॉक्स कैरी करते हैं, ताकि जब हमें भूख लगे हम उस लंच बॉक्स में से फूड निकाल के, खाना निकाल के खा सकें। सेम वे हमारी बॉडी में भी एक्स्ट्रा फूड होता है जो हमारे लिवर और हमारे मसल्स में होता है। तो ये होता है रिजर्व फूड मटेरियल। हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है, लेकिन इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है? लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। यस, सी नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये तो बेसिकली ग्रीन अलगी के जैसा ही है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बायफ्लैजिलेटेड। यहाँ पे देखिए बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। अब ग्रीन अलगी में क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। इन दिस आल्सो ब्राउन अलगी आल्सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। देन ग्रीन अलगी में था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। लेकिन यहाँ पे क्या है? असेक्सुअल, मतलब ग्रीन अलगी में था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय
फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्म, लेकिन ब्राउन एल्गी में है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बायफ्लैजेलेटेड, मतलब इनके अंदर दो फ्लैजेला वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है सब में, आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड oogamous. Examples of brown algae are Ictocarpus, Dictyota, Laminarin, Sorghum and Fucus. So this is the second type of algae, brown algae. So guys, we are going to discuss about the last type of algae, that is called Rhodophyceae or red algae. Now why we call it Rhodophyceae or red algae? Red color is indicated by rhodo. It's indicated by rhodo just because it has a one type of a pigment called as a phycoerythrin. Now phyco means algae and erythrin means red color. Yes, ये देखो, phycology is a study of algae. So phyco means algae. Erythrocyte, what we called erythrocyte, RBC. Yes, RBC, red blood cells. So red is erythro. So here erythro is a red and phyco is algae. So which algae? Red algae. It's common. So let's begin with the first character. Majority of red algae are marine and may be found on the surface or maybe on the depth of the ocean. Yes, मैक्सिमम जो रेड एल्गी होते हैं वो मराइन होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में काफी कम पाए जाते हैं, ये मराइन ज्यादा है। लेकिन मराइन में भी वो एक तो सरफेस पे ऊपर हो सकते हैं या तो एकदम नीचे डेप्थ हो, उस पे डेप्थ पे भी हो सकते हैं। जो एनिमल या तो जो प्लांट एकदम नीचे जमीन पे होते हैं, मतलब समुद्र की जमीन पे होते हैं, उनको हम कहते हैं बेंथोनिक। सो दे मे बी द बेंथोनिक। यस, नेक्स्ट, रेड थैला ऑफ अ रेड एल्गी आर मल्टीसेल्युलर। यस, इट मींस रेड एल्गी जो होते हैं उनका जो बेस होता है वो जनरली ज्यादा सेल से बना होता है। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड रेड एल्गी ऑफ रेड थैला ऑफ रेड एल्गी आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर, मतलब उनका जो बेस होता है पूरा वो मल्टीसेल्युलर से बना हुआ है। नेक्स्ट, द रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडीन स्टार्च। यस, व्हाट वाज इन द ब्राउन एल्गी? यस, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, और इसमें कौन सा है? फ्लोरिडीन स्टार्च। अभी देखिए फ्लोरिडीन स्टार्च कैसा रहता है। It is a similar to amylopectin and glycogen in structure. फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के, मतलब अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये जैसे है ना, सेम उसके जैसा ही फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, रेड एल्गी रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये चीज देखो, ये तीनों में कॉमन थी। जो चीजें तीनों में कॉमन है ना, उसे पूछना मतलब काफी रेयर होता है, मतलब ऐसे एग्जांपल, ऐसी चीजें काफी कम पूछते हैं लोग। सी, ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय fragmentation, brown algae reproduces vegetatively by fragmentation, red algae also reproduces vegetatively by fragmentation. So ये तीनों में सेम है ना, तो ऐसी चीजें काफी कम पूछी जाती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अवॉइड कर दो इस चीज को, लेकिन as a sixth sense of a teacher, these are the situations which are very rarely to be asked. Then asexual reproduction by non-motile spore and sexual reproduction by non-motile gamete, दोनों में सेम ही है। बट यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आइसोगेमस। नाउ इन ग्रीन एल्गी इट वाज आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड oogamous, ऑल थ्री। इन ब्राउन एल्गी आल्सो इट वाज आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड oogamous, बट इन रेड एल्गी इट इज ओनली आइसोगेमस। तो ये चीजें याद रखिए। दे शोस कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट। जैसे हमारे अंदर प्रेगनेंसी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, इनके अंदर भी वैसे ही होता है, लेकिन इनके अंदर हम प्रेगनेंसी नहीं कहेंगे, इनके अंदर जो वर्ड होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। एग्जांपल ऑफ रेड एल्गीज आर पॉलीसिफनियम, पोरफिरा, ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम ये दोनों क्या यूज में आते हैं? फॉर प्रिपरेशन ऑफ agar powder. Yes, which powder? Agar powder. Gracilaria and Giladium are useful for the preparation of agar powder. It acts as a solidifying agent. It converts liquid into the gel. So here we have finished our algae portion. Means we have discussed the characteristics of algae. We have discussed green algae. We have discussed brown algae. We have discussed red algae. All three. Yes. Hello, dear all students.
As you know that right now I have taught you the different variety of algae, like a green algae, brown algae and red algae, but I have taught you the characteristics and separately. So here I'll tell you about the comparison of all of them. Yes, so as you can see, I'm going to teach you by using my graphical tablet. So let's begin. So this one is the first class called Chlorophyceae. Chlorophyceae we commonly call them green algae, like a green. Chlorophyceae means algae. Now Chlorophyceae have a chlorophyll pigment A and B. Remember, A is the pigment which is essential pigment. We have learned in photosynthesis also. Yes, it's an essential pigment. And reserve food material, अगर हम ये one by one अगर देखें, so first Chlorophyceae is a green algae, chlorophyll pigment A and B. Brown algae is called Phaeophyceae and red algae is called Rhodophyceae. Like a Pheo means brown and algae means Phyceae. Rhodo means red and Phyceae means algae. So brown algae में जो pigment होता है वो होता है chlorophyll A और C. लेकिन brown algae को brown color provide किससे होता है? तो वो होता है brown color is provided by the fucoxanthin. और same way chlorophyll pigment chlorophyll A ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, तीनों में है कॉमनली, बिकॉज ये एसेंशियल पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है. लेकिन ब्राउन एल्गी को जैसे फोकोक्सांथिन ब्राउन कलर प्रोवाइड कर रहा था, सेम वे रेड एल्गी को फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो अब देखते हैं हम बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल. देखें, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी इज द स्टार्च. In case of brown algae, it is a mannitol and laminarin both. In case of red algae, it is a floridin starch. Now, cell wall is made by cellulose in case of Chlorophyceae green algae, and in case of Phaeophyceae, it is made by cellulose plus algine. Algine is also the chemical compound. And in Rhodophyceae, it is made by cellulose, pectin, polysulfate and esters. ये जनरली जो पॉइंट है वो इतना कभी पूछा गया नहीं, हाईलाइट नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. Chlorophyceae have a 2 to 8 number of equal and apical type of flagella, and Phaeophyceae have a 2 unequal lateral type of flagella and flagella absent in red algae. अब ये इनके हैबिटेट, मतलब हैबिटेट का मतलब होता है यू कैन से पोजीशन और वेयर दे सर्वाइव. हैबिटेट मतलब उनका समझ लो होम, उनका होम को हम कहेंगे हैबिटेट. इन्वायरमेंट में ये वर्ड जनरली यूज होता है. So, habitat of Chlorophyceae is either fresh water, brackish water and salt water means sea water. Habitat of brown algae is fresh water, rarely brackish water and salt water, rarely a brackish water. And then red algae fresh water but some कुछ ही algae होती है और brackish water में भी है, salt water में most probably है. तो ये वाला टेबल आपको याद रखना पड़ेगा. Thank you. So, dear all students, now we are going to discuss about the second division among the members of plant tree, that's called as a bryophyta, जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट कहते हैं. तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं. पहले मैं आपको ब्रायोफाइट्स डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर उसके दो टाइप पढ़ाऊंगा, लिवरवर्ट्स और मोसेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ब्रायोफाइट्स commonly called as a amphibian plant. Bryophytes are commonly called as amphibian plant just because of what? अब हम अगर एनिमल की कैटेगरी में देखें, जस्ट लाइक अ टोर्टोइस एंड क्रोकोडाइल, दे आर amphibian animal. So why they are called amphibian? Because they generally show their dual mode of life. When they are in the water, they can also respirate, but they can also come on the ground, and from ground they can also return back to water. So they are showing dual mode of life, that is amphibian. But according to the plant, according to the bryophytes, amphibian meaning is something different. They are requiring water. They are requiring water for completing life cycle and fertilization. Therefore, they are called amphibian plant. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था why amphibian plants are called as why bryophytes are called as amphibian plant, just because they are requiring water for completion of their life cycle as well as fertilization. These are the plant which are compulsory required water for completing their life cycle as well as fertilization, and that is why we are calling them as a
एम्फीबियन प्लांट. आप माइंड में फिक्स कर लो इनको एम्फीबियन प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तभी हम इनको कहते हैं एम्फीबियन प्लांट्स. हाँ, सी दे आर फाउंड इन द डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब ये ठंडी जगहों पर और ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पे पानी ज्यादा हो. So just because they are requiring water, therefore they are found in damp and humid places. Second, it may be thalloid or vegetative body attached to the substratum by rhizode. अब ये देखिए, एम्फीबियन प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अगर देखें तो ब्रायोफाइट्स में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी है जो थैलोइड है और कुछ स्पीसीज ऐसी है जो वेजिटेटिव है. थैलोइड का मतलब when the plant body is not differentiated into root, stem and leaves. When the plant body is not differentiated into root, stem and leaves, such plant body is called as a amphibian plant. जिस प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, मतलब हमें क्लियरली समझते नहीं है, वैसे प्लांट को हम कहते हैं थैलोइड प्लांट. तो बेसिकली अलगी सभी थैलोइड होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो थैलोइड होती है और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो नॉर्मली वेजिटेटिव बॉडी होती है. वेजिटेटिव बॉडी मींस इन व्हिच यू कैन सी द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर देयर properly. Okay, now they are attached to the substratum by the rhizode. Now what is meant by attached to substratum? Say for example, this is the you can say lower portion, root portion of the plant body, and this is the upper portion of plant body. So they are attached to the bottom portion by the rhizode. What is rhizode? Generally bryophytes do not have a true root, true stem and true leaf. Generally bryophytes do not have a true roots, true stem and true leaves. So if a true roots are absent, then it is replaced by what? It is replaced by hair-like structure called as a rhizode. तो इनके अंदर true roots नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर seed नहीं है ना. True roots कैसे कहते हैं? हम कैसे true roots कहते हैं? When the roots are produced from the radical portion of a seed, it is called true roots. When the roots are produced from radical portion of a seed, it is called true roots. But they are not having a true roots. Instead of a true roots, they are replaced by the hair-like structure called as a rhizoids. Okay, next point. They lack true roots, stem and leaves. मैंने आपको अभी बताया. And may have leaf, stem, root-like organ. मतलब इनके अंदर true roots नहीं है, लेकिन रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर है. इनके अंदर ट्रू स्टेम नहीं है, लेकिन स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर है. इनके अंदर ट्रू लीफ भी नहीं है, लेकिन लीफ के जैसे स्ट्रक्चर है. मींस ट्रू रूट is absent, but it is replaced by the rhizoid. True stem is also not present, but they are having stem-like organ, and true leaves are also absent, but they are having leaf-like organ. So leaf-like organ is working like a leaf, doing for photosynthesis. Stem is working like a stem, and true root is replaced by rhizoid. It is also working like the root. मतलब उनमें ओरिजिनल चीजें नहीं है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे ऑर्गन है. नेक्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. अगर मेन प्लांट बॉडी अगर हम देखें तो हैप्लॉइड मतलब दे हैव अ वन एंड मींस सिंगल क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दे आर हैप्लॉइड and produce gametes. That's why we call them as a gametophyte. Generally इनके अंदर जो सबसे इनकी जो पूरी प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है. इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, लेकिन बेसिकली इनके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं गेमेटोफाइट. बेसिकली ब्रायोफाइट्स आर द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बट दे प्रोड्यूसेस गैमेट्स. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी. नेक्स्ट, द सेक्स ऑर्गन्स आर. सेक्स ऑर्गन देखिए, इनके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेल्युलर है. सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर मेड बाय द मेनी सेल्स. Now you have to remember male and female sex organ. Male sex organ is called antheridium, which produce antherozoid as their gamete, and female sex organ is archegonium, which produce single egg. Male sex organ is antheridium. Male sex organ is antheridium, which produces antherozoid as a gamete. Female sex organ is archegonium, which produce egg-like structure, which produces a egg-like structure, or you can say egg. Egg is a female gamete. जैसे फ्लावरिंग प्लांट में कैसा होता है, मेल ऑर्गन इज एंड्रोशियम, which produce pollen grain or microspore. Female gamete is a what? In case of female gamete, it is a gynoecium. You can call pistil. You can call carpel, which produces a female gamete. Which produce female gamete? It is called megaspore or egg. So microspore male, megaspore female. Microspore produced from
एंड्रोशियम, मेगास्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम गाइनोशियम, पिस्टिल और कार्पेल। तो यहाँ पे उनके नाम जो है वो रिप्लेस है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजोइड, female sex organ produce female gamete such as an egg, or you can also call it a megaspore, but यहाँ पे megaspore नाम नहीं है because anthroid और eggs use करते हैं। Then anthrozoid release in water and fuse with egg to form zygote। ये देखिए, just imagine this one is the हम consider करते हैं sperm के जैसे, this one is the anthrozoid and this one is the egg। Anthrozoid release from the male body into the water and egg also release into the water, so they undergo fertilization with each other। Why they are released in water? Because what we says, they are requiring water for the fertilization and as well as completion of life cycle। मेल का जो गैमेट होता है एंथ्रोजॉइड वो वाटर में रिलीज होता है, फीमेल का जो गैमेट होता है वो भी वाटर में रिलीज होता है। ये दोनों वाटर में क्यों रिलीज होते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। मेल का जो एंथ्रोजॉइड वो स्विम करके बेसिकली फीमेल के पास आता है एंड अल्टीमेटली दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन। सो दिस फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायरिंग वाटर, देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम एज अ एम्फीबियन प्लांट। ओके गाइस, नेक्स्ट, zygote produce multicellular body called sporophyte। अब zygote produce होगा ना, like antherozoid and egg, antherozoid male gamete plus female gamete egg together, after fusion they produce a zygote। तो zygote में से क्या होता है ये देखिए, zygote produce multicellular body called sporophyte। What is sporophyte? A complete plant body is called sporophyte। Complete plant body is called sporophyte, which have a root-like, stem-like, leaf-like structure, which undergo meiosis to produce haploid spore। मैंने आपको पहले ही कहा, क्या कहा, ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो हेप्लॉइड कैटेगरी में आते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम वाला गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल क्रोमोसोम वाले सेल प्रोड्यूस करते हैं, हेप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब ये देखिए, ये है मेल का एंथ्रोजॉइड या फीमेल का है एग, ये दोनों वाटर में आते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट। और वो जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा? आगे चल के नई प्लांट में कन्वर्ट होगा, मतलब आगे चल के क्या बन जाएगा? वो एक नया स्पोरोफाइट बनेगा और वही स्पोरोफाइट आगे चल के मियोसिस करेंगे और मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होंगे? हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि ब्रायोफाइट स्टार्टिंग से और एंड में हमेशा हैप्लॉइड ही रहते हैं। सो दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द ब्रायोफाइट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर स्पेसिफिक टाइप लाइक लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। So now we are going to discuss with the first type of bryophytes. As I told you the basic characteristics about the bryophyte, now we are going to discuss about the first type, that's called liverworts, and after this we will discuss about mosses. So liverworts, start. The liverworts grows at moist places such as a stream, marshy ground, maybe damp soil and bark of a tree। तो basically जैसे हमें पता है कि liverworts are the type of bryophytes and bryophytes are the amphibia, so liverworts are also amphibia। तो ये वही जगह पे पाए जाएंगे जहां पे पानी ज्यादा हो, just like moist places, water is there, stream, marshy, they are also the containing more water, damp soil, they are also containing water, and bark of a tree, tree तो generally moisture होते हैं, तो वो सभी जगह है जहां पे water available है, तो basically liverworts वहां पे पाए जाते हैं। Second, the plant body of liverworts is thalloid, example in Merchantia। What is thalloid? हमने पहले भी देखा, when the plant body is not differentiated into root, stem and leaves, it is called thalloid। मैंने आपको पहले ही कहा कि ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी आती है, लिवरवर्ट्स और मोसेस, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो थैलोइड होते हैं जिनमें रूट, स्टेम एंड लीफ क्लियरली नहीं दिखते हैं, और कुछ प्लांट वेजिटेटिव होते हैं जिनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीफ क्लियरली दिखते हैं। तो ये वाले कौन है? लिवरवर्ट्स होते हैं थैलोइड, एग्जांपल इसका मर्चेंशिया। देन asexual reproduction is either by fragmentation or asexual reproduction is either by the fragmentation of thala मतलब plant body, yes, or formation of gamete। अभी ये गैमी क्या है? गैमी को जेमी भी कह सकते हैं। मैं आपको मशरूम में बताता हूँ एग्जांपल। यस, ये समझ में एक मशरूम है, ठीक है? तो मशरूम अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करते हैं? बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो बर्ड धीरे धीरे जाके बड़ा हो जाता है और पेरेंट से सेपरेट हो जाता है, फिर वो खुद एक मशरूम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बाय बर्डिंग। तो सेम वे ब्रायोफाइट्स में भी बर्ड के जैसा एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं जेमी। इट इज बर्ड लाइक।
ये बर्ड के जैसा है, बर्ड नहीं, यस, इट इज नॉट अ बर्डिंग प्रोसेस, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी जेमी मीन्स बर्ड जैसा है ना. जेमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एंड असेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इनटू द जेमा कप्स. अब जेमा कप्स मतलब क्या? सी मशरूम में छोटा जो मशरूम है, बर्ड मशरूम, वो बड़े मशरूम में से पैदा प्रोड्यूस होता है. तो मतलब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो गैमी है, गैमी, वो गैमी एक गेमा कप नाम के ऑर्गन में से बाहर निकलते हैं. सो गैमी आर प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द गेमा कप लाइक ऑर्गन. गेमा कप याद रखो है, गैमी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गेमा कप. ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रॉम द मशरूम अ स्मॉल बर्ड इज प्रोड्यूस. दिस बर्ड रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स वन, बट व्हेन इट बिकम्स मैच्योर इट गेट्स सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बर्ड एंड स्टार्ट देयर ओन ग्रोथ. दैट इज बर्डिंग. बट हियर जेमी आफ्टर मैच्योरिटी, यहां पर भी मैच्योरिटी, जेमी आफ्टर मैच्योरिटी डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी मींस सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड forms a what? New sporophyte. Forms a new sporophyte. What is new sporophyte? New sporophyte means new plant body. So Jemmy, here a small bud of a mushroom convert into the mature buds after getting separate from the parent body. Here Jemmy after getting mature, it gets separate from the parent plant and start their own new sporophyte. Forms their new sporophyte. New sporophyte means new plant body. New sporophyte means new plant body. Next, during sexual reproduction, male or female sex organ are produced either on a same or different plant. तो मतलब इनके अंदर यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकते हैं और बायोसेक्सुअल प्लांट भी हो सकते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब like one plant is there only male organ is present, Antheridium, and one plant is there where only female organ is present, Archegonium. But there are certain plant in which Antheridium and Archegonium are present on the same plant. So bryophytes में दो प्रकार के प्लांट होते हैं. एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल ऑर्गन होते हैं लाइक एंथेरिडियम. एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीमेल ऑर्गन होते हैं, आर्चिगोनियम. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों एक साथ में होते हैं. बाइसेक्सुअल प्लांट हम इनको कहेंगे जैसे. यस, so this is the liverworts. Let's move towards the mosses. So now we are going to discuss about the mosses, a second type of a bryophytes. First we discuss about the liverworts, now it's about mosses. Let's start with the one by one character. First, life cycle have a two stage, means life cycle of a mosses have a two stage. दोनों stages समझ लीजिए, काफी important है आप लोगों के लिए. लोग उस स्टेजेस के नाम याद रखते हैं लेकिन उनका डिफरेंस समझते ही नहीं. लाइफ साइकिल ऑफ अ मोसेस हैव अ टू स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज अ प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज अ लीफी स्टेज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज? इन अ प्रोटोनेमा स्टेज इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर एंड लीफी स्टेज इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा. मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेमा स्टेज होती है और वो प्रोटोनेमा स्टेज में, उस प्रोटोनेमा स्टेज में स्पोर में से प्लांट बनते हैं और ऑब्वियसली ब्रायोफाइट्स से तो स्पोर में से ही बनेंगे बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर, यस, दे आर क्रिप्टोगैम, दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट. सो प्रोटोनेमा स्टेज मींस डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम दिस स्पोर एंड लीफी स्टेज मींस डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम प्रोटोनेमा स्टेज. मतलब ये वाली स्टेज किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोटोनेमा के ऊपर है. और प्रोटोनेमा किसके ऊपर डिपेंड है? वो स्पोर के ऊपर डिपेंड है. तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट अपना. सेकंड, they are attached to the soil through the multicellular and branch rhizome. Yes, they means these bryophytes are attached to the soil. Like every plant is attached to soil via root, but bryophytes do not have a true roots, and their roots are replaced by what? Rhizoids. So simply, bryophytes are attached to the soil through the multicellular rhizoids. Through the multicellular rhizoids. Are you getting, guys? Simply, कोई भी प्लांट में रूट सॉइल से अटैच होता है लेकिन ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं है क्योंकि इनके अंदर सीड ही नहीं है तो ट्रू रूट्स नहीं होंगे. तो ट्रू रूट्स की जगह पर इनके अंदर क्या रिप्लेस किया गया हुआ है? राइजोइड. तो सिंपली ब्रायोफाइट्स आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन और आइदर बाय बडिंग. तो इनके अंदर दोनों है. अब तक हमने जैसे पिछला देखा लिवरवर्ट्स, उसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन था, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही आएगी, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों के दोनों दिए हुए हैं. देन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्स ऑर्गन
एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस लीफी स्टेज। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया वो दोनों मिला के बेसिकली लीफी स्टेज बनाते हैं। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट। ऑब्वियस ये तो दुनिया की सबसे कॉमन चीज है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है और जाइगोट के बाद नया प्लांट बनता है, मतलब नया स्पोरोफाइट बनता है। ह्यूमन में जाइगोट में से न्यू चाइल्ड बनता है, न्यू ह्यूमन बीइंग बनता है। देन कैप्सूल प्रोड्यूस स्पोर एंड आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ऑब्वियसली इनके अंदर जो स्पोर होंगे वो मियोसिस से ही तैयार होंगे। व्हाई इट इज सो? क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। स्पोर्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड। सो हमने लिवरमोर्ट्स में भी देखा और ब्रायोफाइट्स की शुरुआत में भी देखा दैट ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड प्लांट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर बाय व्हिच प्रोसेस? meiosis. Just because meiosis is producing haploid spore, mitosis से diploid spore produce होते हैं। एग्जाम्पल है बेसिकली मोसेस के फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। सो दिस इज अबाउट दी मोसेस। तो हमने इसमें ब्रायोफाइट्स देखा, इसमें हमने टाइप ऑफ ब्रायोफाइट मतलब लिवरवॉर्ट्स और मोसेस देखा। सो दिस इज अवर ब्रायोफाइट्स। So now dear all students, we are going to discuss about the pteridophytes. What was the pteridophyte? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया होता क्या है होते हैं pteridophyte. Pteridophytes were the first vascular plant on the earth. Means they were the first plant in which xylem and phloem tissue was found. That's why they are called as the first vascular plant on earth. You can also call them first true vascular plant on the earth. तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं pteridophytes. ये भी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं जैसे अल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो वन बाय वन कैरेक्टर आई विल एक्सप्लेन यू। दीज आर द 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ pteridophyte, बट दैट आई टेल यू एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टर। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑन द अर्थ हु possess vascular tissue। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, vascular tissue का मतलब क्या होता है? vascular tissue means xylem and phloem. Xylem and phloem both are collectively known as a vascular tissue. अभी xylem और phloem का फंक्शन बताना ये इस चैप्टर में तो बेसिकली जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। Xylem are the type of vascular tissue which are responsible for conduction of water and mineral from root to the topmost part of plant body. And phloems are the type of a vascular tissue which are responsible for conduction of water and food from topmost part means leaf to the bottommost portion, root, stem, branches and all other part. That is a function of phloem. Xylem वो वाले टिश्यू होते हैं जो रूट में से वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और फ्लोएम वो वाले टिश्यू होते हैं जो लीफ में से फूड मटेरियल को टॉप से बॉटम तक लेके आने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लोएम। तो ये दोनों के दोनों वॉस्कुलर टिश्यू है। अब हम आपकी जानकारी में और एक चीज बता दूं, वॉस्कुलर टिश्यूज आर आल्सो नोन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू। व्हाट? They are also known as a conducting tissue. Why they are called conducting tissue? It's very easy to guess. They are responsible for conduction of water, mineral and food material. Xylem water and you can say mineral, and phloem water and food material. But both are conducting water, food material and mineral. Therefore, they are called conducting tissue. Second character, they are found in cool, damp and shady places. अब ये ऐसी जगहों पे क्यों पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. जस्ट रीजन इज दैट दे आर ऑल्सो रिक्वायरिंग वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम मेल टू द फीमेल. इनके अंदर भी वाटर का ट्रांसमिशन मेल के फीमेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, और इसके लिए ये ऐसी जगह पे ही पाए जाते हैं जहां पे या तो कूलिंग एरिया हो या तो वाटर ज्यादा हो. दे possess root, stem and leaves. Means they are not what? They are not thalloid plant. जैसे हमने algae में डिस्कस किया हुआ था. algae क्या होते हैं? Algae are usually called as a thalloid plant just because algae do not possess root, stem and branches. हमने bryophyte में देखा था, some bryophytes are thalloid. They do not possess root, stem and branch. But maximum bryophytes are sporophytic plant. Means they are vegetative plant, and in their vegetative plant they possess root, stem and leaves. Same way pteridophyte also possess root, stem and leaves. मतलब ये क्या है?
ये नॉर्मल वेजिटेटिव प्लांट है, इनमें से कोई भी थैलोइड कैटेगरी में नहीं आता। थर्ड कैरेक्टर, लीव्स आर स्मॉल इन सिलाजिनेला एंड लार्ज इन फर्न। व्हाट आर द फर्न एंड सिलाजिनेला? अब आप यहां पे देखिए, फर्न एंड सिलाजिनेला आर द एग्जांपल, दे आर द एग्जांपल। आप यहां पे देखो, सिलाजिनेला, इज इट? सो सिलाजिनेला एंड फर्न आर द एग्जांपल। तो फर्न में जो लीफ होते हैं, मतलब फर्न जो टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी है, उसके अंदर जो लीफ होते हैं वो बड़े बड़े लार्ज होते हैं, और सिलाजिनेला जो है उनके अंदर लीफ की साइज काफी छोटी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर, स्पोरोफाइट हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्पोरोफिल। अब आप ये समझ लीजिए, काफी सारे स्टूडेंट मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं जिनको इसका मतलब ही नहीं पता होता। अब इसका मतलब मैं बता रहा हूं, स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? यस, स्पोरोफाइट मींस प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट बॉडी। तो अब यहाँ पे यूज कीजिए, देखो, प्लांट बॉडी मींस स्पोरोफाइट, और प्लांट बॉडी हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्पोरोफिल। तो यूजुअली जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ओरिजिनल लीफ होते हैं, तो इनके अंदर लीफ के जैसा एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा है स्पोरोफिल। क्या कहा है उन्होंने? स्पोरोफिल, which forms structure called strobili or cone, example सिलाजिनेला और इक्विसिटम। मतलब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में से क्या बनता है? स्ट्रोबिला और कोन जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो सिलाजिनेला और इक्विसिटम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, द गैमेटोफाइट हैव एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। अब ये फिर से सुन लीजिए, इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मेल गैमेट इज अ स्पर्म produce inside which organ? Testis. Female gamete is a ova or egg or ovum and produce inside female ovary. So male gamete sperm, female gamete ovum, male gamete produce in testis, female gamete produce in ovary. तो यहाँ पे testis और ovary के नाम बदल जाते हैं। Yes, this is male sex organ is entheridium and female sex organ is आर्चिगोनियम। फिर से याद रख लीजिए माइंड में, मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द आर्चिगोनियम। जैसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज गाइनोशियम। ये हम एंजियोस्पर्म में देखेंगे, ठीक है? सो मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म इज द एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नहीं, फ्लावरिंग प्लांट में एंथेरिडियम नहीं कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में कहेंगे एंड्रोशियम, फीमेल को गाइनोशियम। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। नेक्स्ट कैरेक्टर, water required for transfer of a male gamete to female gamete, that we call basically what? Fertilization. वाटर किस चीज के लिए जरूरत है? इनको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करने के लिए जरूरत है, वाटर की जरूरत होती है, जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे हम उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सो टेरिडोफाइट्स आर आल्सो रिक्वायरिंग वाटर फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ अ मेल गैमेट टुवर्ड्स अ फीमेल गैमेट फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब पहले वो पोलिनेशन जैसा हो रहा है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इनके अंदर फ्लावर नहीं तो पोलिनेशन नहीं करते। इवन तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता, फिर भी उनके अंदर एयर पोलिनेशन होती है। आफ्टर ऑल हमें गैमेट्स तो ट्रांसफर करना है ना। सो इन टेरिडोफाइट आल्सो गैमेट इज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल, फ्रॉम एंथेरिडियम टू आर्चिगोनियम, बट इट आल्सो रिक्वायर्ड वाटर। Next character, see, this is very important character for the you can say generally government offices. Government offices में टेरिडोफाइट काफी होते हैं। Pteridophytes include horsetail and ferns used as a medicinal, soil binder and ornamental. ठीक है, अब जनरली सॉइल बाइंडर का मतलब क्या होता है? मेडिसिनल तो आप समझ गए होंगे, टेरिडोफाइट मेडिसिनल प्लांट के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। एंड सॉइल बाइंडर मतलब क्या होता है? Just imagine that you wanted to transfer, you can say 1 or 2 big temples of a flower from Mumbai to the, say for example, Mumbai to the Surat city. It's a 4 hours distance. So how you will transfer the flower? Once you will transfer the flower, this flower may become a dry. So generally जो फ्लावर होते हैं उनको ऐसे सॉइल के अंदर डाला जाता है, ऐसे सॉइल के अंदर डाला जाता है जो पानी को काफी समय तक अपने अंदर में होल्ड करके रखे। तो ऐसे प्लांट होते हैं जनरली जो सॉइल बाइंडर के तौर पे काम करते हैं।
एंड देन ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव, जो जनरली ब्यूटीफुल होते हैं प्लांट, डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल. ठीक है. So next character is majority of them are homosporous. What is meant by homosporous? Homo means similar and sporous. Sporous means gametes. ठीक है. तो इनमें से जो मेजोरिटी है वो क्या है? होमोस्पोरस. होमोस्पोरस मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इक्वल इन साइज, सेम इन साइज एंड बट Selaginella and Salvinia produces heterosporous. हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट, स्पोरस का मतलब होगा गैमेट्स. होमो सिमिलर, स्पोरस गैमेट्स. हेटेरो डिसिमिलर, स्पोरस गैमेट्स. होमोस्पोरस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, हेटेरोस्पोरस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट. हेटेरोस्पोरस किसके अंदर आता है? Selaginella. और बाकियों में ज्यादातर क्या कैसे होते हैं? होमोस्पोरस. Next one, development of a zygote into embryo takes place in female gametophyte. Human में भी ऐसा ही होता है, plant में भी ऐसा होता है. In human being, after the sexual process, male transfers sperm into the female body through the semen gel, and then zygote formation takes place in female body. Fertilization, zygote, morula, blastula, everything takes place in female body. Pregnancy also takes place in female body. In case of a flowering plant also, when male gametes enter into the female gamete, it undergoes double fertilization, and this double fertilization ultimately produces what? Zygote and endosperm. So pteridophytes are also showing this last feature, which is similar to the human being and flowering plant. I think so this feature is similar to the maximum number of organisms because it is regarded to the reproduction. Yes. Now pteridophytes are basically fall under 4 main classes. टेरिडोफाइट्स के 4 अलग अलग क्लासेस होते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में डिस्क्राइब नहीं किए गए हुए, लेकिन उनको शॉर्ट में उनके नाम और उनके एग्जांपल दे दिए हुए हैं. तो आपको ये मैच द कॉलम में आएगा. कैसे मैच द कॉलम में? फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास दिया हुआ है ल्यूकोप्सिडा, तो आपको उसके एग्जांपल पता होने चाहिए. एग्जांपल ऑफ ल्यूकोप्सिडा इज अ Selaginella and Leucopodium. Second class is a Spinopsida. So example of Spinopsida is a Equisedum, and third class is third number class. Yes, that is a Psilopsida. Example is Psilotum. And fourth class is Pteridopsida. Example is Dryopteris, Pteris and Adiantum. So this is complete topic about the pteridophytes.